مہدی سے۔ جموں کشمیر میں کشمیریت کی مثال ایک مرتبہ پھر دیکھنے کو ملی۔ اننت ناگ اور بڈگام میں پنڈت خواتین کی موت پر مقامی مسلمانوں نے ان کی آخری رسومات انجام دی۔ پیش مدثر قادری اور سمیع اللہ کی رپورٹ۔ اننت ناگ کے کھندرو علاقے میں کشمیر کی صدیوں پرانی مذہبی بھائی چارے کی روایت پھر اس وقت زندہ ہوئی جب ایک پنڈت خاتون کملیش اچانک رحلت کر گئیں۔ اس دوران مقامی لوگوں نے ہی کملیش کے آخری رسومات کے لیے سارے انتظامات انجام دیے اور ارتھی اٹھانے میں بھی پیش رہے، جس کے بعد وہاں کے مقامی مسلمانوں نے کشمیری پنڈتوں کے ساتھ مل کر ان کی آخری رسومات انجام دی۔ برفباری کی وجہ سے کملیش کے رشتہ دار جموں سے کھندرو وقت پر نہیں پہنچ سکے، تاہم اہل خانہ نے مقامی مسلمانوں کی مدد سے ہر کام انجام دیا اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ادھر بڈگام کے پارنیوا گاؤں میں بھی کشمیری پنڈت خاتون 40 سالہ سمی بھٹ کی موت ہو گئی۔ اس کی اطلاع ملنے پر کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوئے اور غمزدہ ارکان خاندان سے اظہار تعزیت کیا۔ پورا گاؤں ہے، بلکہ ہمسایہ گاؤں بھی یہاں پر ہے، وہ اسی لیے ہے، ہمیں اس کے ساتھ پورا تعزیت میں شریک۔ ہاں، سب سے بڑی چیز جو ہے کشمیر میں وہ ہے انسانیت۔ انسانیت کے بلبوتے پہ ہی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد آتے ہیں۔ ہمارے ہندو بھائی گئے ہیں، مجھے تو نہیں پتا ہے، جو بھی 90s میں گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ سب آئیں، اپنے اپنے گاؤں میں بسیں۔ اس موقع پر مسلم خواتین کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ مسلم پڑوسیوں نے پنڈتوں کی روایات کے مطابق ہی آخری رسومات کے تمام تر انتظامات کیے اور ارتھی کو کاندھا دیا۔ تو یہاں دیکھا تو بہت سارے لوگ تھے، جتنی ایکسپیکٹیشن تھی اس سے بہت زیادہ۔ تو ان سے میری بات بھی ہوئی تو انہوں نے کہا آپ کو گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، ہم ہیں یہاں، ہر مصیبت میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آج بھی جو مصیبت آئی ہے اس میں ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کہ جو صدیوں سے یہاں کشمیر میں چلتا رہا ہے وہی اسی طرح آج بھی چلتا رہا ہے، تو یہ دیکھ کے لگ رہا ہے کہ پرانا جو رواج یہاں پہ ہے ابھی برقرار ہی ہے۔ بس بھائی چارہ رہنا چاہیے، باقی کچھ نہیں۔ باقی کشمیر میں حالات کیسے بھی رہے ہو، لیکن یہاں کے لوگوں نے ہمیشہ رواداری اور بھائی چارے کو ترجیح دی ہے۔ یہی کشمیریت ہے، یہی انسانیت ہے، اور یہی پیغام ہم آگے پہنچانا چاہتے ہیں کہ کشمیر میں جیسے بھی حالات رہے ہو، لیکن یہاں کے لوگ ہمیشہ مل جل کر سکھ دکھ میں حصہ لیتے ہیں۔ سمیع اللہ، نیوز 18 اردو، پارنیوا۔ جموں کشمیر کے کئی علاقوں میں تازہ برفباری اور بارش ہوئی ہے۔ وادی سمیت مختلف علاقوں میں شدید سردی کی لہر جاری ہے۔ کئی علاقوں میں لوگوں کو مختلف مشکلات کا سامنا ہے۔ دیکھیے رپورٹ۔ وادی کشمیر اور خطے چناب کے کئی علاقوں میں تازہ برفباری اور بارش ہوئی ہے۔ شہر سری نگر کے بیشتر علاقوں میں بھی ہلکی برفباری ہوئی ہے۔ برفباری سے اگرچہ رات کے درجہ حرارت میں کچھ اضافہ ہوا، مگر وادی میں شدید سردی کی لہر بدستور جاری ہے۔ سری نگر میں گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 0 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے چند بالائی علاقوں کے لیے برفانی تودے گرنے کی وارننگ بھی پہلے ہی جاری کر دی ہے۔ اننت ناگ کے بالائی اور میدانی علاقوں میں بھی تازہ برفباری ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سے عام زندگی کافی متاثر ہو گئی ہے۔ دن کے درجہ حرارت میں بھی نمایاں کمی آئی ہے۔ سیاحتی مقامات پہلگام، ویری ناگ اور کوکرناگ میں بھی تازہ برف سے سیاحتی صنعت سے جڑے افراد میں نئی امیدیں جا گئی ہیں۔ ادھر اننت ناگ اور دیگر قصبے جات میں برفباری کی وجہ سے لوگوں کو ٹریفک جام جیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی مقامات پر سڑکوں پر پانی بھی جمع ہو گیا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بیشتر علاقوں میں دن بھر بجلی سپلائی بھی متاثر رہی ہے۔ اس سال اللہ تعالیٰ نے کم برف ڈالا ہے، مگر گورنمنٹ نیند میں ہے۔ یہ پہلے سے یہ انتظام نہیں کرتے ہیں، مطلب سڑک کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اس میں، دوسرے بجلی، اندھیرے میں ہم رہتے ہیں۔ یہاں کوئی انتظام نظر نہیں آ رہا ہے، جبکہ پہلے اسے گورنمنٹ کھڑا ہونی چاہیے۔ ان کو پتہ ہے، موسمیات ان کو پتہ دیتا ہے کتنے دنوں برف ہوگی، بارش ہوگی۔
जिला शोपिया में बर्फबारी से लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों का कहना है कि खुश्क मौसम की वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे थे। जिले के कई इलाकों में 1 फुट के करीब बर्फ रिकॉर्ड की गई है। लोगों का कहना है कि चिड़े कलान में बर्फबारी बागबानी और ज़राई शोबे के लिए काफी अहम है। उधर जिला इंतजामिया ने बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल से निपटने के लिए अमले और मशीनरी को काम पर लगा दिया है। तो ये बर्फबारी है वो हमारे मेवा बागात के लिए बहुत ही मुफीद होती है, जबकि गर्मी में हम देखते हैं पानी की किल्लत होती है। इस बर्फबारी की वजह से वो किल्लत दूर होती है। अल्लाह ताला ने हम पर रहमत बख्शी है, जो बर्फबारी हुई है बहुत मुफीद थी हमारे लिए, क्योंकि हमारे जितने भी मुनसर हमारी इकानमी और सिर्फ बागों पर मुनसर है उनके लिए बहुत ज़रूरी था आज का ये बर्फबारी हुई है। जिला कुलगाम के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में चिड़े कलान की पहली बर्फबारी हुई, ताहम बाद दोपहर मौसम में बेहतरी आई। जिले के दूरदराज इलाकों में कई इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई। बर्फ हटाने की मशीनों को सुबह से ही काम पर लगाया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर सकीना एतू ने मुतालबा किया है कि नूराबाद के दूरदराज इलाकों में बर्फ हटाने के साथ साथ लोगों को दीगर सहूलियात फराहम की जाए। जिला पुलवामा के बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। संगरवानी और मुल्हक्का कंदी इलाकों में तकरीबन 8 इंच से 1 फुट तक बर्फ जमा हो गई है। पुलवामा के कंडी इलाकों में आम जिंदगी काफी मुतासर हो गई है। बर्फबारी के बाद पुलवामा के कुछ कंडी इलाकों में बिजली सप्लाई मुतासर हुई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे के AE फयाज अहमद ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि सभी राब्ता सड़कों से बर्फ हटाई गई है। कांग्रेस के जिला सदर फयाज अहमद डार ने मुतालबा किया है कि बर्फबारी के दौरान कंडी इलाकों में लोगों को बुनियादी सहूलियात बहाल रखी जाए। गुलमर्ग और टंगमर्ग में ताजा बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग में नया साल मनाने के लिए आज आए सयाह ताजा बर्फबारी का खूब लुत्फ ले रहे हैं। टंगमर्ग में भी कई इंच ताजा बर्फ रिकॉर्ड की गई है। मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से आम लोगों को मुश्किलात पेश आ रही है। गुलमर्ग में बर्फबारी देखने के लिए ज्यादातर सयाह आते हैं। गुलमर्ग में सयाहत से जुड़े लोग भी बर्फबारी की वजह से खुश हैं। किश्तवाड़ में भी रवा मौसम की पहली बर्फबारी हुई। बेशतर बालाई और मैदानी इलाकों में बर्फबारी हुई है। खिते में शदीद सर्दी की लहर जारी है। मरवा, वारवन, मसिल और दक्षिण जैसे इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। लोगों ने इंतजामिया से मांग की है कि शदीद सर्दी के पेश नजर तिब्बी और दीगर बुनियादी सहूलियात की माकूल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। लोगों का कहना है कि बर्फबारी से जिले में पानी की किल्लत का मसला भी हल होगा। बर्फबारी के बाद किश्तवाड़ और आसपास के इलाकों में बिजली की आंख मिचोली शुरू हो गई है। इस वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। ये बहुत खुशकिस्मती है, इससे हमें किश्तवाड़ के लोगों को पानी की किल्लत जो होती है इससे दूर हो जाती है, क्योंकि किश्तवाड़ में पानी की किल्लत हमेशा रहती है। बर्फ से ही मतलब हमारा जो है 12 महीने का जो ये पानी का जो वो उससे कमी दूर हो जाती है। भलीसा गंदू में भारी बर्फबारी हुई है। बेशतर अहम सड़क राब्ते बंद हो गए हैं। लोगों को कई मुश्किलात का सामना है। उनका कहना है कि सड़कों से बर्फ हटाने के काम में ताखीर हो रही है। ठाठरी, कहलूतरान, शाहरा समेत कई सड़क राब्ते बंद हो गए हैं। यहाँ पत्थर गिरने और जमीन खिसकने के वाकयात पेश आए हैं। इस वजह से कई गाड़ियां दरमांदा हो गई हैं। भलीसा और ठाठरी के कई दूर दराज इलाकों में सड़कें बंद रहने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। ठाठरी किलोतरान शाहरा पर ट्रैफिक बंद हुआ है। वहीं अंदरूनी देहात की राब्ता सड़कों पर भी भारी फिसलन पैदा होने की वजह से ट्रैफिक निज़ाम मुतासर हुआ है और इसके साथ साथ पानी और बिजली की सप्लाई भी मुतासर हुई है। हमारी ये डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन से कि फिलफौर जो है राब्ता सड़कों को बहाल किया जाए। पीर पंजाल पहाड़ी रेंज और जवाहर टनल के आर पार ताज़ा बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मुसाफिरों को काफी मुश्किलात का सामना है। बीकन और दीगर मुतल्लिका एजेंसियों की जानिब से बर्फ को फौरी तौर पर हटाने के बाद कौमी शाहराह पर जम्मू से कश्मीर की जानिब गाड़ियों की आवाजाही दिन भर जारी रही। काजीगुंड में सैकड़ों की तादाद में माल बरदार गाड़ियां दरमांदा रही। ड्राइवरों और कंडक्टरों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। मुसाफिरों ने ट्रैफिक जाम जैसी मुश्किलात की शिकायत करते हुए कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की बदनज़मी का इल्जाम लगाया। ट्रैफिक हुकाम ने मुसाफिरों को हिदायत दी है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सफर पर निकलने से कबल मुतल्लिका ट्रैफिक कंट्रोल यूनिटों से राब्ता करें। रफियाबाद और बारामूला के चंडीगढ़ ऊपरी इलाकों में 3 इंच के करीब बर्फ रिकॉर्ड की गई है। अगरचे बर्फबारी ज़रे और बागबानी शोबे के लिए काफी सूदमंद है, ताहम इसकी वजह से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। बाद दोपहर तक बर्फबारी वाले कई इलाकों में सड़क राब्ते बंद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। डोडा में आग की एक होलनाक वारदात में 3 मंजिला इमारत खाकस्तर हो गई है। आशिक हुसैन नामी शख्स के घर में बिजली शॉर्ट होने से आग लग गई। लोगों का कहना है कि इलाके में फायर सर्विसेज की सहूलियात मैसर न होने की वजह से आग पर वक्त पर काबू नहीं पाया जा सका।
आग ने देखते ही देखते 3 मंजिला मकान को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। लोगों ने इंतजामिया से मुतासरा को इमदाद फराहम करने और इलाके में फायर सर्विसेज सहूलियात फराहम करने की मांग की है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।